आज आप सब अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे साथ जुड़े हैं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल हैं बिकॉज क्लियरली दीज आर द टू बिगेस्ट एसेट्स दैट वी हैव इन लाइफ। शुरुआत में हम मंगलाचरण प्ले करेंगे। नीरज जी आप प्लीज मंगलाचरण प्ले कर दीजिए। गंगवास खोलो। जय जिनेंद्र आप सभी को। नीरज जी थैंक यू सो मच। जैसे आप सबको पता है जेनिन ने आज का सेशन ऑर्गेनाइज करवाया है भावना योग पे। आप में से बहुत लोग हमारे साथ अक्सर जुड़े रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे और हमारे सेशंस पे। यहाँ पे जो नए हैं हम उन्हें जेनिन के बारे में बताना चाहेंगे। स्वाति जी, I would like to request you to introduce everyone to Janin. जय जिनेंद्र सभी को। Welcome, a very warm welcome to everyone to today's program on Bhavna Yoga. Before we begin, I will just give a very quick introduction to Jainin. Jainin is one association that a group of individuals that we started, a group of professionals started around 5 years back, around 4 years back in April 2017. And it was primarily intended to ensure that the professionals come together and connect, create a like-minded social circle and leverage the richness that we have in our religion. Jainism में primary focus practical application of Jainism principles पे है, और the modus operandi is कि we have bi-weekly sessions where professionals come together and discuss any topic of interest. And हमने पिछले 4 साल में 85+ सेशंस किए हैं on various topics like कर्मा थ्योरी, हमने 10 लक्षण सीरीज रन की, 12 भावना सीरीज रन की, अभी 16 कारण भावना सीरीज चल रही है। लेकिन आज हम इंटरनेशनल योगा डे कल है, उस उपलक्ष्य में आज हम जैन धर्म का एक योग जो भावना योग है उस पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स आए हुए हैं राजेश जी, and I will just introduce. So this is about Jainin. If you have any questions, do let know. If you want to be added to Jainin group, आप यहाँ chat में message डाल सकते हैं. And now I will just request Shefali ji to introduce the speaker of today's session. Jai Jainin. Thank you, Swati ji, for giving us insight about Jainin. Now, without any further delay, I would like to introduce you all to the speaker today, Mr. Rajesh Jain. He has done his mechanical engineering from REC Jaipur and is working in a corporate firm called Endurance Technologies in Pune. Most importantly, he has been actively conducting multiple Bhavna Yoga camps, both physically and online, since the past 3 years. It is our proud privilege to have you with us and enlighten us on Bhavna Yoga.
Rajesh ji, over to you. Yeah, so good evening all. Sabhi ko Jai Jineन्द्r. So nice to see you all assembling for this session over here. So first I would just like to know how many of you have really heard about Bhavna Yoga? How many of you all practice? I would say first, let's start with that. How many of you have practiced Bhavna Yoga? So maybe you can raise your hands in the chat box so that we can just understand. Okay, 4, right? And how many of you have heard about Bhavna Yoga? They know what it is. Okay, maybe 7, 8. Okay, fine. Can we all have everyone on? Yeah. Right. So just. Swati ji, can we have all? Yeah, thank you very much, Swati. Yeah, so we'll start since I feel that there are a lot of people who don't know about Bhavna Yoga. So we'll start with the introduction on it, what it talks about. So we'll have a short video first on this, and then we will run through a PowerPoint presentation. योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक अभूतपूर्व देन है भावना योग। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का एक अभिनव वैज्ञानिक प्रयोग है भावना योग। यद भाव्यते तद भवति, यानी हम जैसी भावना भाते हैं वैसा ही होता है। इसी प्राचीन उक्ति पर आधारित इस योग को आधुनिक मनोविज्ञान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। भावना योग का यही आधार है। आधुनिक प्रयोगों के आधार पर यह बात सुस्पष्ट हो चुकी है कि भावनाओं के कारण हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके आधार पर अनेक गंभीर बीमारियों की चिकित्सा भी की जा रही है। यदि हम नियमित भावना योग करें तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। भावना योग, इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। प्रार्थना या कि इनर नरिशमेंट, प्रतिक्रमण इनर क्लीनिंग, प्रत्याख्यान इनर रेजोल्यूशन और सामायिक इनर रिफ्लेक्शन। इसके श्रद्धापूर्वक और नियमित प्रयोग से हम अपनी आत्मा का निर्मलीकरण करके अपनी चेतना की विशुद्धि बढ़ाते हुए अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। Yeah, so this was a short video on this. So now we'll run through a PowerPoint presentation. I hope it's visible. Yes. Yeah, thank you. So आप सभी लोगों ने बहुत सारी योग के बारे में सुना होगा. So mostly those are Patanjali based yogas such as dhyan. Then there are a lot of pranayams. Then we have a lot of activities which are in this area. बट आज हम जिस योग की बात करने वाले हैं, ये जो कन्वेंशनल योग है उससे थोड़ा डिफरेंट है, राइट? सो ये मन से जुड़ा हुआ है. योग मीन्स समेशन, सम. सो जनरली हम योग, वही जो शारीरिक एक्टिविटीज वाला योग रहता है, उसी से उसको जोड़ते हैं. बट भावना योग ये है एक नॉवल, आई वुड से इट्स अ नॉवल एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज बीन डन बाय मुनि श्री प्रमाण सागर जी, व्हिच टॉक्स अबाउट द एंशिएंट mythology plus it is a blend of ancient mythology and also on the modern psychology. So हमारा मन जो है वो primarily 2 प्रकार का होता है. One is a conscious mind and second is the subconscious mind. So what does these 2 mind perform? तो चेतन मन जो होता है वो विश्लेषण यानी एनालिसिस का काम करता है.
सोचता है, योजनाएं बनाता है और इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अवचेतन मन यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर दीर्घकालीन स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। हमारी जो इमोशंस हैं वो सभी इस अवचेतन मन से जुड़े हुए हैं। हमारी आदतें, हमारे संबंध, हमारे जो बैड हैबिट्स हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा प्रोग्रेशन, हमारे इंट्यूशंस और हमारी स्पिरिचुअल रिलेशंस, ये सभी जो है हमारे अवचेतन मन से जुड़ी हुई होती है। एक इसको हम पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बहुत बार होता है हमें जल्दी उठना होता है, कहीं सफर करना होता है, तो हम अलार्म लगाते हैं 4 बजे का, एंड देन व्हाट वी फाइंड इज कि हमारी नींद 4 बजे से पहले ही खुल जाती है। ये कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? सो कैन वी अंडरस्टैंड? मे बी यू कैन रेज हैंड so that we have this session more interactive. I'll request those who had raised their hand in the earlier question, they can make it down. Yeah, so many people they have raised hand on this. So yes, it is true. ऐसा क्यों होता है हम समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अवचेतन मन के अंदर यह बात बैठ जाती है कि हमें सवेरे 4 बजे उठना है, और वह ये इंश्योर करता है कि हम सुबह 4 बजे उठ जाएं, और वो प्राय अलार्म लगने से पहले ही हो जाता है। तो यह अवचेतन मन की शक्ति को समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो हमने सभी ने एक्सपीरियंस भी किया है। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू? चेतन मन जो है वह सिर्फ दिमाग का 5 से 10% हिस्सा होता है, वेयर एज सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90 to 95% होता है। चेतन मन हमारे सारे फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करता है, वेयर एज सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई भी तर्क शक्ति नहीं होती है, और ये सभी बातें को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। सारे निर्णय जो है वह चेतन मन करता है, जबकि उसकी प्रिपरेशन पार्ट जो है वह अवचेतन मन करता है, और जो हम सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन के संपर्क में आकर के और हमारे विचारों को अवचेतन मन उसको साकार करता है। तो यह दोनों के बीच डिफरेंस है। अब आप ये देखेंगे कि दोनों में अवचेतन मन जो है वो 90 to 95% है, whereas we are not at all conscious about this part of our mind. हम इसको यूज में ही नहीं लेने की कोशिश करते हैं। भावना योग क्या करता है? हमारे अवचेतन मन की शक्तियों को जगाता है। अवचेतन मन क्या करता है? यह 2 तरह के रूल्स अपनाता है। पहला, बार बार कही जाने वाली बात वह हमारे मन का हिस्सा बन जाती है। मतलब if we feed something in our subconscious mind continuously, consistently, then it becomes part of our memory, it becomes part of our mind. और यह सच और कल्पना में अंतर महसूस नहीं करता है। इसका मतलब इसको यह नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इसको जो बोला जाता है वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। एक पश्चिम के अंदर ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही वह परिवर्तित होता है, यानी वैसा ही हमारे सामने आता है। इसको हम बीम बैलेंस तराजू के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे तराजू के अंदर 2 पलड़े होते हैं, उसी तरह से हमारे लाइफ में भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के 2 पलड़े हैं। द मोमेंट कोई भी एक पलड़ा भारी होता है, जैसे आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, नेगेटिविटी थोड़ी सी भी बढ़ जाती है अगर इंसान के अंदर, तो वो क्या करती है? धीरे धीरे नेगेटिविटी को और ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बाय वर्च्यू ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम वी विल फाइंड दैट हमको वैसे ही लोग मिलेंगे, हमको वैसे ही सिचुएशंस हमारे सामने मिलेंगी। Whereas the opposite of this also is also possible, which means if we increase positivity, then we'll have more positivity in our life. I think सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत बार होता है कि हम बोलते हैं कि अरे आज का तो दिन ही खराब निकल गया, सुबह ऐसे लोग मिले, ऐसा हुआ, गाड़ी पंक्चर हो गई, बॉस ने डांट दिया, वगैरह वगैरह। आई होप यू ऑल हैव मस्ट also experience such kind of situations. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बार कोई चीज हमारे साथ जब गलत होती है और हमारे माइंड के अंदर उसी तरह के विचार और भावनाएं आते हैं, तो उसी तरह की चीजें हमें रिटर्न में मिलती है। सो जो वेस्ट है, यानी जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वह कहता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स, जबकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह कहती है यद भावते तद भवति, यानी जैसी आप भावना भाते हैं वैसा ही होता है। एक कंसेप्ट और हम समझेंगे जो मॉडर्न साइकोलॉजी से रिलेटेड है, विच इज कॉल्ड एज ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस क्या होता है? हम अपने आप को सुझाव देते हैं, संबोधित करते हैं
ताकि हमारे ऊपर उसका असर पड़े. इट कैन बी आवर बॉडी, इट कैन बी आवर माइंड, इट कैन बी आवर हैबिट्स, एनीथिंग. आई रिक्वेस्ट ऑल टू बी ऑन म्यूट प्लीज. देन इससे हम और क्या करते हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं को जागरूक करते हैं. हम अपने आप को अटेंटिव बनाते हैं, रियलाइज करते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है और हम उसको ठीक कर रहे हैं. सो जस्ट इसका एक एग्जांपल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, सो वो जब घर आकर के घर में भी अपने बच्चों पर या वाइफ पर गुस्सा करता है, एंड अगर वह अपने आप को इस तरह का कमांड दे कि मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो धीरे धीरे आप क्या पाएंगे कि उसके अंदर जो उसकी भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जब भी उसको अगली बार गुस्सा आ रहा होगा तो उसको रियलाइज कराएंगी कि उसको गुस्सा आ रहा है, और वो इमीडिएटली सबकॉन्शियस माइंड उसको अलर्ट कर देगा और वो अपने आप को उस सिचुएशन में शांत कर सकता है. सो ये पावर है ऑटो सजेशन. ओके, सो वी विल हैव अ स्मॉल एक्टिविटी of half a minute or 1 minute max. So I'll ask all of you to just think over any one shortcoming जो हमारे जीवन के अंदर है और उसको हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, and please try to make a auto suggestion for it. So I'll just pause for half a minute. You can think over it also. Yeah. So I hope you were able to do. Can you raise your hands in the box so that I understand who were able to do this, frame something, realize first of all that what is the shortcoming and what kind of auto suggestion they can have for it. Okay, so we could have few hands have been raised on this. So anyways, so to help you out, if other people are not able to do that, so what we will do is, I think there's something on screen which got there. Okay, anyways, so just to we have prepared some standard auto suggestions for you all. Say for example, अगर किसी को क्रोध आता है तो वह बोल सकता है कि मुझे शांत रहना है. किसी के अंदर बदले की भावना आती है ना, so that he can, वह यह सोच सकता है कि मुझे क्षमा रखना है. किसी को कोई impatient रहता है, उसको मुझे धीरज रखना है, I have to keep patience, and so on. So there are a couple of shortcomings which generally people have, which we have tried to list down and create auto suggestions. और भावना योग में जो गुरुजी हैं प्रमाण सागर जी महाराज, उन्होंने इसके अंदर बहुत सारे ऑटो सजेशंस डाले हुए हैं. तो अगर आप अपने लिए कोई ऑटो सजेशन फ्रेम भी नहीं कर पाए और अगर आप भावना योग नियमित करेंगे तो अपने आप वो अच्छे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाएंगे. सो व्हाट आल्सो कैन बी डन इज दैट to have a more impact of these auto suggestions, we can keep it even as a mobile ring. We can keep it as a paper hanging in our next to our table, or in our car we can have certain written down statements and so on. So this is just to create an impact on the subconscious mind. The purpose is that we continuously feed this auto suggestions to our subconscious mind, which will help to change us. अब हम समझेंगे भावनाएं क्या है. भावनाएं हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों का पुंज है, वो सब भावनाएं हैं. तो संस्कार से क्या होता है, भावनाएं बनती है, भावनाओं से हमारी सोच से हमारी परमानेंट भावनाएं बन जाती है, उससे हमारी प्रवृत्ति, एंड देन उसके बाद हमारा चरित्र, दैट मीन्स हमारा कैरेक्टर भी वैसे बनता है. सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट इज कि जैसी हमारी भावनाएं होती है वैसा हमारा चरित्र बनता है. भावनाओं का क्या बल है? सो I think most of the people we have are Jains only, so in this group. So आप सभी को पता है हमारे यहाँ 12 भावनाएं, 16 भावनाएं हैं. तो इस तरह की भावनाएं हमारे को वैराग्य भी दिलाती है, तीर्थंकर तक की पदवी दिलाती है. तो यह हमारी भावनाओं का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है. अब इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? We'll understand that
हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। तो ये जब भी हमारे अंदर किसी तरह की भावनाएं होती है तो हमारे स्राव यानी जो सिक्रीशंस हैं इन ग्रंथियों के द्वारा वह कुछ प्रकार के निकलते हैं। यदि हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें होंगी तो अलग स्राव, अलग सिक्रीशंस निकलेंगे, अगर नेगेटिविटी होगी तो अलग सिक्रीशंस निकलेंगे, और यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं, और हमारी अंदर जितनी डिजीजेस अगर कोई आती हैं तो उस तरह के नेगेटिव सिक्रीशंस के कारण भी आती है। इसको साइंटिस्ट जो है न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में चेंजेस करती है, और इसको ईईजी और एमईजी जैसे टेस्ट के द्वारा भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नाउ वी विल आल्सो अंडरस्टैंड टू साइंटिफिक, आई वुड से मेडिकल साइंस टर्म्स, प्लेसिबो एंड नोसिबो। सो प्लेसिबो क्या होता है कि यदि किसी मरीज को यह दवा दे दी जाए, यह बोलकर दवा दी जाए कि उसको दवा दी जा रही है, परंतु उसको एक मामूली सा शुगर पिल दिया जाता है, तो भी वह उसको दवाई की तरह असर करती है। इसका क्या मतलब है कि यह प्लेसिबो का काम कर रहा है, राइट? सो दिस इज एक्चुअली इम्पैक्ट लाइक अ प्लेसिबो ऑन हिम, एंड इसका रिवर्स होता है जिसको कि नोसिबो बोलते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई किसी मरीज को अच्छी दवाइयां दी जाती है परंतु उसके अंदर यह विचार आ जाता है कि वह ठीक नहीं हो सकता है, उसका इलाज नहीं हो पाएगा, तो उसके अंदर अच्छे से अच्छे दवाई देने के बाद भी उसके ऊपर वह इम्पैक्ट नहीं आता दवाइयों का, और वह ज्यादा और बीमार हो जाता है अच्छा इलाज के बाद भी। यू मस्ट ऑल हैव सीन इन दिस कोविड सिचुएशन ऑल्सो, व्हाट वी फाइंड इज दैट जो लोग जिनका मनोबल कम हो गया है, उनको अच्छे इलाज के बाद भी उनका in fact people had even lost lives because of that loss of self confidence. So भावना योग क्या करता है, हमारे अंदर जो प्लेसिबो है उसको बढ़ाता है और नोसिबो को कम करता है। So भावना योग क्या है? ये तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र करने का एक नोवेल एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट इज इनर नरिशमेंट, विच इज मोर लाइक अ प्रेयर। इनर क्लीनिंग, जिसको प्रतिक्रमण बोलते हैं, इन विच वी रियलाइज व्हाट ऑल फॉल्ट्स, व्हाट ऑल रॉन्ग वी हैव डन इन आवर पास्ट लाइफ और नियर पास्ट, सॉरी। एंड उसके बाद में हम रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे अफर्मेटिव वाक्य हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। और सामायिक, विच मीन्स इनर रिफ्लेक्शन, वेयरइन वी डीप डाइव इनटू आवर इनर कॉन्शियस। इसका समय जनरली 30 to 35 मिनट्स है। इसको हर व्यक्ति कर सकता है हु वांट्स टू ब्रिंग अ चेंज इन हिज लाइफ। किस समय? इट कैन बी डन एनी टाइम एज पर आवर कन्वीनियंस। सुबह इस स्लाइड में इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज सुबह के अंदर वातावरण में एक खुली हवा, एक एनर्जी लेवल अलग रहता है, बट इट कैन बी डन एनी टाइम एज पर दी कन्वीनियंस। वाई? क्योंकि हम इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड को हम कमांड्स दे रहे हैं। सो हमारा बॉडी का पोस्चर या टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता भावना योग में, जो नॉर्मल योग में होता है। भावना योग की क्या लाभ है? इससे हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। हम अपनी भावनाओं को और खुद के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बढ़ती है। डिप्रेशन, चिंता इत्यादि, फियर, एंजाइटी से हम छुटकारा पा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों में हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस है। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई वोंट बी एबल टू शेयर, बट डेफिनेटली ग्रुप्स में हम डाल सकते हैं। स्वाति कैन हेल्प। आई थिंक स्वाति ने एक एक्सपीरियंस डाला भी था। सो ये क्या करता है? दीज आर ऑल बेनिफिट्स। इसके अलावा हमारे को कॉर्पोरेट्स के अंदर ऑल्सो वी हैव रियलाइज्ड दैट वर्क एफिशिएंसी लोगों की भी बढ़ी है। लोगों ने ये एक्सपीरियंस हमारे को शेयर किए हैं। अंत में जो है मंगल भावना के द्वारा इसका समापन होता है, जिसके अंदर पूरे विश्व की प्रॉस्पेरिटी और मंगल भावना की कामना की जाती है। तो सभी को जय जिनेंद्र। एंड देन विल नाउ So maybe question and answers we can take later on at the end, as per the format of this program. And we'll actually now practice Bhavna Yoga, which will be through a video. Actually, it is done by Praman Sagar Ji Maharaj. So we'll run that video. आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है। कोशिश करिए, अगर पॉसिबल है तो आप मैट के ऊपर बैठ सकते हैं। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वह चेयर के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में कि आप चेयर्स पे हैं, सो इट इज ओके इवन देन इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट।
और इसके अंदर एक ओम चांटिंग रहेगी शुरू में, उसके बाद में अनुगूंज है विच इज लाइक अ हमिंग साउंड, वो करना है। और साथ में बीच में एक ऊर्जा प्रवाह भी इसमें होगा, वेयर इन वी इनवाइट ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन द यूनिवर्स एंड आस्क देम टू कम इन अस एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी, ब्रिंग द गुड हेल्थ टू अस। तो वो एक छोटा सा पार्ट होता है इसके अंदर। उसका वीडियो के स्टार्ट में एक छोटा सा ग्लिम्स रहेगा कि हमें उस एनर्जी को कैसे देखना है। सो वो मैं रन करूंगा एंड देन विल गो टू द भावना योग। वीडियो आज हम फिर से और मुखमंडल के बाद मेरे गर्दन पर ऊर्जा की धार क्रमशः प्रवाहित हो रही है। ऊर्जा की धार प्रवाहित हो रही है। ओम। ऊर्जा की धार प्रवाहित होते होते मेरे मस्तिष्क पर, मस्तिष्क के एक एक नलिकाओं में, धमनियों में उसका प्रवेश हो रहा है और मस्तिष्क से प्रवेश करते करते क्रमशः ये धारा अंदर जा रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। और ये धीरे 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 मेरे मस्तिष्क पे प्रवेश कर रही है। ओम। मस्तिष्क पीला हो तो उसे लाल देखें और लाल देख करके फिर धीरे धीरे ऊर्जा के प्रवाह से उसे पूरी तरह नीलाभ बना दें और अपने आप को पूर्ण सकारात्मकता से भरपूर महसूस। ढीली, टखने ढीले। अब हम भावना योग, सो वी विल स्टार्ट विद द भावना योग नाउ। आप लोगों को रियलाइज करना है, सभी को महसूस करना है जो बोला जा रहा है और रिपीट करना है। सो आई विल अगेन टेल, आपको सेंटेंसेस को रिपीट करना है, बीच में गैप्स आएंगे, उसमें हमें जो बोला जा रहा है उसको बोलना है। पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, पाँव के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कुहनियाँ ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला, एकदम ढीला ढीला ढीला, कहीं भी कोई जकड़न नहीं, खिंचाव नहीं। यदि कहीं कुछ महसूस हो रहा हो
तो अपने मानसिक निर्देश द्वारा उसे दूर करें। पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। और अब गहरी सांस भरें। पुनः श्वास भरें। तीन बार अनुगूंज करेंगे। गहरी सांस भरें। मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार व्यक्त करते हुए उन्हें नमन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज का यह दिन अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज का यह दिन अच्छा दिन बन सके। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज का यह दिन अच्छा दिन बन सके। हे प्रभु,
मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज का यह दिन अच्छा दिन बन सके। हे प्रभु मेरा दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा बने, सबका दिन अच्छा बने। हे प्रभु सबका मंगल हो, 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 जग का 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 मंगल हो। सभी स्वस्थ रहे, 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 सभी सुखी हो, 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 सर्वत्र अभय 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 हो, सर्वत्र अभय, सर्वत्र अभय हो, सर्वत्र अभय हो। हे प्रभु सब में शांति हो, 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 जग 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 में शांति हो। हे प्रभु सभी स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब में शांति हो, सब में शांति हो, सब में शांति हो, सब में शांति हो, सभी पवित्र रहे, सभी पवित्र रहे, सभी पवित्र रहे, सभी पवित्र रहे, सभी प्रसन्न रहे, सभी प्रसन्न रहे, सभी प्रसन्न रहे, सभी प्रसन्न
रहे। हे प्रभु अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का, बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में मैंने जो भी बुरा किया, जो भी बुरा कहा, अथवा जो भी बुरा सोचा, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरे द्वारा बुरा करने, बुरा कहने, अथवा बुरा सोचने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु मैं अपने दुष्कृत्यों की घोर निंदा करता हूँ। सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु मैं बैर मुक्त, विरोध मुक्त और भय रहित हूँ। हे प्रभु मैं बैर मुक्त, विरोध मुक्त और भय रहित हूँ। मुझे सबसे प्रेम है। मुझे सबसे प्रेम है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु संसार की सारी सकारात्मक शक्तियाँ मुझ में समाहित है। हे प्रभु विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे
प्रभो विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभो विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस करे विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर बादल के पिंड की तरह मेरे मस्तिष्क के ठीक ऊपर आकाश में स्थित है और वहाँ से ऊर्जा का वह प्रवाह मेरे मस्तिष्क पर बरस रहा है। ऊर्जा की धारा अविरल मेरे मस्तिष्क पर गिर रही है। वो धार निरंतर मेरे मस्तिष्क पर गिर रही है। विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश करे और वह ऊर्जा की धार मेरे मस्तक पर गिरकर मेरे रोमकूप खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे वह प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। ऊर्जा की धार को अपने ऊपर बरसती और अपने मस्तिष्क के एक एक धमनियों में प्रवेश करता हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे मस्तिष्क की समस्त धमनियों के मध्य वह ऊर्जा का प्रवाह आ चुका। मेरे मुख के प्रत्येक प्रदेश में ऊर्जा की धार आ चुकी। धीरे धीरे बढ़ते हुए मेरी गर्दन और कंधों पर वह ऊर्जा की धार प्रवाहित हो रही है और एक साथ मेरी पीठ, छाती और दोनों हाथों में ऊर्जा का प्रवाह बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मेरी एक एक धमनियों और एक एक नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह है। रक्त की संचार की भांति ऊर्जा की धार आगे प्रवाहित हो रही। मेरे छाती और पेट में भी ऊर्जा का यह प्रवाह आ गया है। शीश से लेकर कमर तक मैं ऊर्जा का पिंड बन गया। महसूस करते हुए ऊर्जा की यह धार मेरे कमर के नीचे दोनों झांगों और घुटनों तक पहुंच गई है और प्रवाहित होते होते पांव की पिंडलियों और एड़ियों तक ऊर्जा का यह प्रवाह आ गया। नख से शीश तक सर्वत्र ऊर्जा 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 में हो गया। मेरा संपूर्ण शरीर ऊर्जा में, मैं पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मैं पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। इस सकारात्मकता से मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे भीतर समाहित है। अनंत ऊर्जा को मैंने धार लिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। सुरक्षितो हम, सुरक्षितो
सुरक्षितोऽहम् 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 मैं सुरक्षित हूँ 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 मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ मेरा इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा है 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 मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मेरा परिवार स्वस्थ है मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ सोहम 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 साथ बैठे सोहम सोहम के अनुगुंज को अपने भीतर महसूस करें
दोनों हाथ जोड़े, प्रसन्नता से आंखें खोले, सारे जग की मंगल कामना से मंगल भावना बोले। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो जग में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो जग में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए
जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। सभी को जजने। सभी ने अभी भावना योग किया, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। इसके उपरांत आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वह जरूर पूछिए। आप एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं। जो चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई थिंक शेफाली जी विल हेल्प इन कन्वर्टिंग दोज क्वेश्चंस। किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हो? About Bhavna Yoga, the process, the philosophy, any type of questions are welcome. जी जय जिनेन्द्र। ये सोहम का मतलब क्या होता है? जी सोहम का मतलब होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है, सह प्लस अहम। सह मतलब वो और अहम मतलब मैं। तो जैसे वो है वैसा मैं हूँ। सो वो कौन है? वह भगवान, जो डिवाइन पावर है, भगवान है। तो इसमें हम यह भावना करते हैं कि हम भगवान की तरह बने। भगवान में जो क्वालिटीज हैं उनमें किसी भी तरह के शॉर्टकमिंग्स नहीं है, दोष नहीं है, उन्होंने सब पे काबू पा लिया है। तो हम उनकी तरह बने और हमारे अंदर जो आत्मा है हम उसके अंदर भी वो गुण ला पाए। अच्छा। और एक मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ऊर्जा प्रवाह का जो भावना योग होता है, तो मेरी ताई जी करती हैं डेली मॉर्निंग में। तो वो बोल रही थी कि मतलब मैं ऐसा फील करती हूँ जैसे ऊपर से मेरे शरीर में ऊर्जा आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो वो ऐसा बोल रही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कुछ ज्यादा ही ऊर्जा मेरे शरीर में हो गई, और जैसे मतलब मैं थोड़ा हेल्दी सा महसूस कर रही हूँ। तो अगर हम गलत कर लेते हैं इसको तो ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए गलत करने में इसमें देखो इसमें कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि आप एक एनर्जीज को आप इनवाइट कर रहे हैं। सो बल्कि रादर सही करना ज्यादा मुश्किल होता है इस एक्टिविटी को। तो वो अगर सही तरह से कर पा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन गलत में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आप इनवाइट नहीं कर पाएंगे, या वो एनर्जी जो है हाई लेवल ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, लो आएगी वो। बट इट वोंट बी हैविंग एनी साइड इफेक्ट ऑन द पर्सन। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Any other questions? I think प्रियंका जी has written कि क्या हम किसी अपने के लिए के नाम लेके बोल सकते हैं कि वो स्वस्थ रहिए। देखिए भावना योग के अंदर हम ये सारे कमांड्स देते हैं कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे। मंगल भावना में भी अंत में यह बोला गया है। बट स्पेसिफिकली अगर एक पर्सन के ऊपर, इसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं कि हम ये भावनाएं हम किसी को समर्पित करके अगर इसको करें। बट जो साइंस कहता है वो ये भी कहता है कि हम अपनी भावनाएं किसी और के लिए भी भा सकते हैं।
एक और क्वेश्चन है राजेश जी, व्हाट टाइम इज अ गुड टाइम टू डू द भावना योगा? Yeah, so I'll say the morning hours are the best time. So morning means it can be as per your convenience, maybe from 5 to whatever time. आप अपनी जो राइजिंग जो उठने की हैबिट्स हैं उसके हिसाब से लोग कर सकते हैं, बट देन इसको कभी भी किया जा सकता है. वाई? इसका कंसेप्ट देखिए क्या है. कंसेप्ट है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें रजिस्टर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो आप कभी भी कर सकते हो, राइट क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि वो रात है या सुबह है. सुबह सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि सुबह के अंदर पूरे वातावरण के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो वो हमें सपोर्ट करती है, राइट. सुबह का एनवायरनमेंट है, खुशनुमा होता है, सो जो ट्रैफिक जो पोल्यूशन है वह कम रहता है, तो वो सारी चीजें हमें फेवर करती है. सो दैट इज द रीजन. राजेश जी, मेरा एक सवाल है. श्योर. अपन आंख बंद करने की जगह नासा दृष्टि करके भी कर सकते हैं क्या इस भावना योग को? बिल्कुल कर सकते हैं. उसमें कुछ अंतर आएगा या एक समान है? देखिए, अंतर ऐसा कुछ नहीं आएगा इसके अंदर. देखिए, आंखें बंद करने का सिर्फ रीजन ये रहता है कि हमारी दृष्टि और लोगों पर नहीं जाती है, सो हम अपने अंदर डूबने की कोशिश करते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है. हालांकि नासा दृष्टि भी वही पोस्चर है कि हम लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान देखते हैं उस तरह से हम देख रहे हैं. तो अगर आपको सूट करता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट प्राइमरली हम यही रिकमेंड करते हैं कि आंख बंद करके करें. जी धन्यवाद. मैं प्रदीप जैन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से. जी प्रदीप जी. मुझको पूछना था कि भावना योग में और लेशा परिवर्तन में कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, बिल्कुल कनेक्शन है. देखिए, हमारी 6 तरह की लेशिया, अब आपने थोड़ा सा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ लिया है. सो हमारी लेशियाएं क्या है, हमारे जो परिणाम है ना, हमारे परिणामों से हमारे भाव बदलते हैं. तो हमारे अंदर अलग अलग तरह की लेशियाएं होती है ना, नील, कापोत, इस तरह से पद्म, पीत लेशिया, शुक्ल लेशिया, ऐसे अलग अलग है. सो नील इज द वर्स्ट, आई वुड से, जो सबसे खराब परिणाम देने वाली होती है, एंड शुक्ल सबसे अच्छी लेशिया होती है. तो 6 तरह की जो लेशियाएं होती है उनमें से 3 शुभ लेशियाएं होती है, 3 अशुभ लेशियाएं होती है. बाद जो शुरू वाली है वह अशुभ लेशियाएं हैं. तो लेशियाएं क्या क्या होती है? लेशियाएं भी ऐसे ही जनरेट होती है कि हमारे क्या भाव है, हमारी कैसे परिणाम है ना, तो उसी हमारी तारतम्यता कैसी है, तो उसी के ऊपर वह बेस्ड होता है. तो ऑफ कोर्स ये एक अटेम्प्ट है कि हम अपने भावनाओं को, अपने भावों को सुधार रहे हैं, यानी लेशिया का भी साथ में हम परिवर्तन कर रहे हैं, एटलीस्ट उस समय के लिए जो समय हम कर रहे हैं. बट अगर हम इसको रिपीटेडली करेंगे, देखिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, आई थिंक जो अरविंद जी ने पूछा, राइट, सो कि आप इसको कंटिन्यूअसली करें, तब ये आप जो कह रहे हैं लेशियाओं में जो परिवर्तन है, क्योंकि लेशियाएं भी बदलती रहती है, और अगर हम इसको रेगुलरली करेंगे तो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब ये अच्छी लेशियाएं, मतलब हमारे अच्छे विचार रजिस्टर होंगे, तो हमारे परिणाम अच्छे होंगे. नहीं, क्या कोई साइंटिफिक अभी रिसर्च हुआ है कि इसमें अपनी लेशियाएं जो हैं बदलती हैं इस भावना योग के द्वारा? देखिए, साइंटिफिक नहीं हुआ है, ट्रूली स्पीकिंग. हमारे अभी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स लाइक के.एम. गंगवाल जी हैं, पुणे बेस्ड एक डॉक्टर हैं, कुछ पीएचडी कई डॉक्टर्स करवा रहे हैं. तो उसमें ईईजी एमईजी टेस्ट तो उन लोगों ने किए गए हैं, और साथ में उनके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं ईईजी एमईजी में जो रिकॉर्ड होते हैं वो देखे गए हैं. बट लेशिया जो है, डायरेक्टली मैं कहूंगा कि उस तरह से दिखाई देना, देखिए वे व्यवहार में तो दिखता ही है ना. अगर आप वैसे भी अगर आप लेशिया देखो, भावना योग हो चाहे नहीं हो, तो आप अंदाजा लगा के ही कहेंगे ना, जब आप बहुत तेज गुस्से में है, इसका मतलब आप मे बी वर्स्ट काइंड ऑफ में, यानी नील. मैं थोड़ा बीच में बोलूं क्या? मैं थोड़ा बीच में बोलूं. ये जो ईईजी और एमईजी है, जब भी हम जो नॉर्मल ध्यान करते हैं या एकाग्रता, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, तो ईईजी और एमईजी दोनों इंप्रूव हो जाते हैं उसमें भी. और उसको दूसरे तरीके से अगर एक और भावना से कहें कि जो प्रेक्षा ध्यान है उससे भी ईईजी और एमईजी ठीक हो जाता है, काफी ठीक हो जाता है. और डीप ब्रीदिंग से भी ठीक हो जाता है, अनुलोम विलोम करते करते भी ठीक हो जाता है. ये साइंटिफिक प्रूवन है.
All are proven. या देखिए अपने अपने सब चीजों का इम्पोर्टेंस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अच्छा है या कोई खराब है। नहीं वो नहीं है, नहीं इशू वो भी नहीं है, अच्छा बुरे का नहीं है। मेरा इशू ये था कि क्या भावना योग से लेशा परिवर्तन होता है क्या, मेरा इशू वो है। लेशा परिवर्तन, हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में भेज दीजिएगा, आप मुझे बाद में। बट स्टिल आई टेल कि ये परिवर्तन जरूर होता है। ये हम रियलाइज खुद भी कर सकते हैं कि अगर सपोज गुस्से के परिणाम है तो गुस्से के परिणाम में हम रहेंगे नील लेशा की तरफ या और कापोत लेशा की तरफ रहेंगे अगर थोड़ा ठंडे हैं हम, थोड़ा गुस्सा है। लेकिन जब हम भावना योग करेंगे तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ पीपल जिनका गुस्से करने की जो आदत है वो छूट गई है। लोगों का जो फियर रहता था वो छूट गया है। वो छूटा है तो डेफिनेटली उनकी लेशा तो ठीक हुई है। बट आप जो कह रहे हैं साइंटिफिकली आई वुड से इट इज ओनली ट्रू EEG MEG ओनली। बट एक आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव रिकमेंडेड, सो वी कैन थिंक ओवर इट कि कैसे हम कन्वर्जन को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। May I say something? Yeah, sure. Lesha is a philosophical construct. तो लेशा को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं आप, ये तो कंस्ट्रक्ट है कि आपका एक बिहेवियर का पूरा पैटर्न है, उसको लेशा का नाम दिया गया है कि किस तरह की सिचुएशंस में आपके कैसे परिणाम होते हैं। जैसे 3 जो बुरी लेशाएं हैं, सबसे ख़राब कृष्ण, फिर उसके बाद नील, फिर उसके बाद कापोत, तो वो उसकी इंटेंसिटी उसी तरह से धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर उसमें धीरे धीरे बढ़ती हैं। सबसे पहले पीत, फिर उसके बाद पद्म, फिर उसके बाद शुक्ल। तो यानी ये आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये लेशा है हमने मेजर कर लिया, इसमें ऐसे क्वांटिफिकेशन की बात नहीं है, लेकिन परिणामों से आप उसके मैनिफेस्टेशंस आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं कि ये है। तो ये अनुमान का रूपी प्रमाण होता है इसका। ऐसा नहीं करते कि थर्मोमीटर से आपने मुंह में नाप लिया कि लेशा क्या है। इट्स नॉट दैट। So we should not seek to demonstrate it. I mean, it's not something that lends itself to that kind of demonstration. It is to be inferred. But coming to your question, लेशिया का पर्पस है ये इन्फरेंस। लेशिया जो है, लेशिया is meant for inference of feelings. हाँ, it's a philosophical construct. It's a philosophical construct. ये एक दार्शनिक सिद्धांत है कि आपका जो पूरी एक समग्रता में जो आपका व्यवहार है वो एक लेशा का परिचायक है कि इस प्रकार की लेशा में इस तरह के परिणाम हो। एंड सेकेंडली, अगर हम भावना को छोड़ करके वैसे भी अभी तक मेजरमेंट हम बोले तो अभी तक वैसे भी मेजरमेंट हुआ है नहीं हुआ है किसी तरह का लेशा का, या इट इज नॉट भावना योग के अलावा भी देखते हैं तो वो भी नहीं हुआ है कहीं किसी तरह से। बट देन वो हमें अंडरस्टैंड करना है हमारे बिहेवियर से, हमारे पैटर्न से, हमारे परिणामों से कि हम किस फेज में अभी चल रहे हैं। थैंक यू सो मच राजेश जी। डॉक्टर नीना, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबको जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो लेशा, तो जैसा कि कमल जी ने कहा कि इट इज नॉट मेजरेबल, बट एक कर्लियन फोटोग्राफी होती है जिससे कि हम ऑरा रीड करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड दिल्ली IIT में, उन्होंने इस पे PhD की है ऑरा पे। तो उन्होंने ये चीज, हमने बहुत सारे, मैंने भी उसकी स्टडी की, बहुत सारे केसेस में देखा कि जो थॉट प्रोसेस होता है ये इमीडिएट हमारे ऑरा को तो तुरंत इफेक्ट करता है। और ऑरा जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो उसमें पहले कोई भी डिजीज होती है या डैमेज होती है, बाद में वो हमारी फिजिकल बॉडी पे मैनिफेस्ट होती है। तो लेशा तो हम नहीं देख सकते, लेकिन कर्लियन फोटोग्राफी से ऑरा देख सकते हैं, और ध्यान के बाद हमारा ऑरा पूरा बदल जाता है। इनफैक्ट वो फीट्स में भी मेजरमेंट होती है, इतना फीट जी, डिस्टेंस हाँ वाइड हो जाता है। जैसे आचार्य का लोगों ने मेजर किया है, आचार्य का काफी बड़ा है। जैसे मंदिर का भी ऑरा होता है, इवन हर चीज का ऑरा होता है अपना एक। तो वो उसमें हम उसको मेजर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कर्लियन फोटोग्राफी से।
अच्छा, एक मैं और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा सभी को कि डेली भावना योग हम लोग करते हैं, शाम के समय रखते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइमिंग्स उस तरह से लोगों को शाम को समय होता है। सो 7:30 to 8:30 का टाइम रहता है डेली। सो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में लिखा है अभी, आई कैन ऑल्सो रीड इट आउट, 8791068379. So you can just ping me, so we can add you over there if those who are interested. या और भी कोई किसी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो वो अलग से भी बात कर सकते हैं और यहाँ भी बात कर सकते हैं। तो राजेश जी, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और आए हुए हैं। अच्छा, आई डिडंट नो दिस। ओके। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, कैन वी अलाइन भावना योग मेडिटेशन बी क्लब्ड विद रेगुलर योगा? इफ यस, it should be done before yoga, regular yoga or after regular yoga? इसमें मैं आपका इसको 2 पार्ट में इसका आंसर करता हूँ। विपुल जी ने पूछा ये। एक उनमें उन्होंने एक वर्ड लिखा है भावना योग मेडिटेशन। एक्चुअली आई लाइक टू क्लैरिफाई दैट भावना योग एग्जैक्टली ये मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम ये ध्यान का प्रोसेस नहीं है पूरा। थोड़ा सा हम ऊर्जा ध्यान करते हैं जब हम एनर्जीज को इनवाइट करते हैं। लेकिन ये पूरा मेडिटेशन का प्रोसेस नहीं है, राइट? इसके अंदर हम एफर्मेशंस ले रहे हैं या प्रतिक्रमण वाला पार्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल सच थिंग्स एंड रेजोल्यूशन, सामायिक एटसेट्रा। सो थोड़ा उसको मैं करेक्ट करना चाह रहा था, बट यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम इसको योगा के साथ, बिल्कुल योगा के साथ आप इसको क्लब कर सकते हो। एंड इफ यू ऑल लाइक तो हम लोग योगा भी इसमें क्लब कर सकते हैं। एक्चुअली पॉसिटी ऑफ टाइम से हमने थोड़ा नहीं रेकमेंड किया, ऐड नहीं किया, बट देन अगर आप इंडिविजुअली करते हैं तो आप योगा साथ में इसको कर सकते हैं। आपको पहले योगा करना चाहिए रादर देन डूइंग इट आफ्टर। राजेश जी, प्रदीप जैन बोल रहा हूँ दोबारा से। हाँ जी, सीडी की कॉपी मिल सकती है इसकी, जो अभी गुरु महाराज ने कराया था? श्योर। मैं आप लोगों को व्हाट आई विल डू, मैं इसमें टाइप कर देता हूँ अभी देन द लिंक, एंड मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में दिया, तो आप लोग अगर उस पर मैसेज कर देंगे वो भी मैं कर सकता हूँ। एंड आई विल गिव द लिंक टू शेफाली आल्सो, शी कैन सर्कुलेट टू जेनी। ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अपने रिक्वेस्ट। थैंक यू। और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाउ मच इज टोटल योग टाइम और इट कैन बी कट शॉर्ट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबल, प्लीज क्लैरिफाई। या सो राजीव जी हैं क्या अभी? आई होप ही इज देयर, ही इज लिसनिंग। इफ नॉट देन मे बी अदर्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड। देखिए, भावना योग का जो टाइम पीरियड है जनरली 30 to 40 मिनट्स के भावना योग हैं जो महाराज जी ने करवाए हैं। अगर किसी के पास समय की कमी है तो 5 मिनट का एक शॉर्ट भावना योग उन्होंने कैप्सूल की तरह बनाया है, एक सुबह के लिए और एक रात्रि में सोने से पहले का, तो वो किया जा सकता है। बट आई स्टिल रिकमेंड कि हमें 30-35 मिनट वाला जो भावना योग है वो करना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव कमांड्स हैं। एंड व्हिच इज द नेक्स्ट वन, स्वाति जी? वो एक क्वेश्चन थोड़ा हमने एड्रेस कर लिया है। ही सजेस्टिंग दैट एंड ही इज सेइंग दैट वी शुड बी डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज बिफोर वी डू मेडिटेशन। सो आपने ये बोला कि करना चाहिए तो पहले फिजिकल कर लेना चाहिए, लेकिन मतलब क्या ये रेकमेंडेड है कि पहले फिजिकल करके फिर भावना योग करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। हमें हमेशा पहले फिजिकल करना चाहिए बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ सच एक्टिविटी। या ध्यान वगैरह भी करते हैं तो पहले हमें फिजिकल करना चाहिए। नहीं, देखिए, रेकमेंडेड तो ये है कि पहले फिजिकल और फिर ये, और एक ये है कि हमेशा भावना योग करने से पहले फिजिकल करना ही चाहिए कुछ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, ओके, गॉट योर पॉइंट। सो नहीं, ऐसा कोई फॉर्मेट में नहीं है कि आपको भावना योग करने से पहले फिजिकल एक्टिविटी करनी या योग करना, एक्सरसाइज करनी। भावना योग आप नॉर्मल बैठे बैठे किसी भी पोस्चर में, किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो। देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यही है, जो एक दूसरे योगा में कंस्ट्रेंट रहता है कि हमारे को पोस्चर बनाना पड़ता है, सुखासन में बैठना है। ऑल्दो इसमें भी बैठना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इसके अंदर वो चीजें कंपल्शन नहीं रहता है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड को बातें फीड कर रहे हैं। जितनी बार आप करेंगे, दिन भर करेंगे,
अलग अलग बार करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स है किसी के भी अंदर, तो उसको जगह जगह पर लिखे भी साथ में, उसको दिखता रहे, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे वो प्रिंटिंग होती रहे उसकी। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इसको बार बार करें, ना कि किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद करें। Thank you. Any other questions from anyone? Baki, we can have experiences also of people. How did they feel? If anyone want to share, then apart from question. गुरु महाराज की आवाज में इतना भावना योग सुनना बहुत ही पवित्र काम है, और उनकी जब भाषा में और भावना से सुनेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि असर जो है भावना योग का कई गुना हो जाएगा, मेरे ऐसे ही मानना है, इसीलिए मैंने आपसे कॉपी मांगी। जी जी बिल्कुल। और सरिता जी ने हैंड रेज किया है। सरिता जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये भावना योग से जब से जुड़ी हूँ कि कितना चेंज आता है। कि मैं जब सब लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, मेरा बार बार मन यही बात कहने का कर रहा था कि आप प्लीज क्वेश्चन नहीं करिए, इसको प्रैक्टिकली करिए। जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे ना, एक बार करने के बाद बार बार करते ही रहेंगे, और हम अपने अंदर इतना चेंज महसूस करते हैं, इतना ठहराव महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में। मैं एज ए हीलर, जैसे भक्तामर जी का एज ए हीलर काम करती हूँ, तो उसमें भी मुझे इतनी हेल्प मिली, उसमें अपने अंदर ठहराव, पेशेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई इसको करने के बाद। हम ज्यादा ध्यान लगने लगा, ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट हो गए। राजेश जी को कभी हमने एक सेशन जब कराया था, उसके बाद मैं रेगुलर हुई। चाहे हमने गुरु जी को बहुत बार टीवी में देखा, बहुत बार किया, लेकिन जब से हमने अपने यहाँ सेशन कराया, जैसे आज आपने कराया, वैसे हमने जब IVS के अंडर ये सेशन कराया था, तो तब से मैं बिल्कुल रेगुलर जुड़ी हुई हूँ, और उसका बहुत बहुत चेंज है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इसको प्रैक्टिकली करिए, बिल्कुल करिए, इसको यूज करिए। जितने लोग यहाँ हैं जिन्होंने सुना है, उसको जरूर शुरू करिए, और अब बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Sarita ji, for sharing your experience. Any other questions from anyone, or anything anybody wants to share? तो वैसे तो हमारा टाइम भी हो गया है, तो maybe if there are no further questions, we can wrap up. And I would just take this opportunity to thank Rajesh ji. Rajesh ji, thank you for conducting such a great session on the Genuine platform. Definitely all of us have immensely benefited. और मैं सरिता जी की बात से एग्री करती हूँ कि मतलब हमने सुना भी है, टीवी पे देखा है, लेकिन अभी मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आपने करवाया, और स्पेशली विद दैट बेस जो आपने पीपीटी से क्रिएट किया, आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट फॉर दिस टू सिंक इन. I have known about Bhavna Yoga, but I have not been practicing it so regularly. I am highly motivated to do that. Or even the question answers and the way you answered were very enlightening. So thank you very much. Thank you for conducting the session, and I'll also thank all the participants here. And I believe Sukriti or Suhani, जो प्रामाणिक समूह के members हैं, they are also here. And so thank you for being here. Or Sukriti, Suhani, if you want to share anything, please do.
Jai Jinendra, Swati ji, we've been practicing Bhavna Yoga for There's some echo. Swani. Yeah. We've been practicing Bhavna Yoga for last 1 year. Maybe, I'm not sure if you have another device open, which is creating the echo. Yes, sorry, we just switched it off. Yeah, please continue. We've been practicing it for last 1 year and बहुत composure देखा है अपने interactions में मैंने after doing it for 1 year. तो and capacity to do work has also increased. तो हम अभी I think twice the work कर रहे हैं in all this lockdown and everything, but you don't feel tired at all at the end of the day. तो वो बहुत beneficial रहा है. Thank you so much, Swani ji, for sharing the experience, and it's motivating me as well. I think everybody else, because यहाँ पे काफी professionals हैं, and definitely everybody wants that kind of a thing as well, to increase one's capacity to work and also composure and behavior in today's time. So thank you for sharing that. Yeah, I'll have one request. And so I'll also thank first of all to the Jainin group, Swati ji, then Shefali ji. I don't know others' names. Sorry, pardon me. So, but still, it was a very nice attempt by all of you for spreading this across. And I'll request all participants, if they want to actually want to get this done in their respective companies, or maybe in certain groups they are associated with, so they can definitely contact me. I've shared my number, and I'll request all to please do it regularly, and we can have some kind of a follow-up session sometimes to understand. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra, Rajesh ji. बहुत 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 अच्छा Yeah, लगा. absolutely. Thank you so much, राजेश जी. और राजेश जी भी जैनिन के मेंबर हैं अभी, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप जैनिन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं. शेफाली, over to you. No, that's it. I was about to say the same thing. Thank you so much. हम आपके बहुत आभारी हैं. बहुत बहुत अच्छा लगा आज. Thank you. Thank you, everyone. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra.